morning, children. Today we are going to start chapter number 6 from class 7, 0 or. What is the name? 0 or. And firstly we will discuss about the author. Who has written it? Alexander Blade. Who was he? He was a popular American science fiction and fantasy author. उन्हें science fiction stories और fantasy stories लिखना बहुत पसंद था और उनकी कुछ famous stories हैं. कौन सी? The Brain and the Plotters. So, come to the chapter. If someone says कि उसे चांद पर जाना है, उसे मून पर जाना है, तो how it is exciting, कितना exciting होगा ना ये कि मून पर जाना है. It is very adventurous. So, कैसे जाएंगे आप मून पे? With the help of rocket, you will sit in the rocket, then it will be go to the moon in the space. है ना, ऐसे ही जाएंगे ना. ट्रेन या बस से तो नहीं जाएंगे. तो we will know that how exciting is this story. कितना मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Father had already gone when Bobby woke up. That disappointed Bobby a little, but then he remembered this was the big day. Naturally, Father would go to the project early, and at 4 o'clock, Bobby shivered deliciously at the thought of it. He was quiet at breakfast, glad that Mother was occupied because he didn't want to talk. Not today, he didn't. Might spill something secret, might even let out the big secret. That would be terrible. Of course, all things were secret at Buffalo Flats. So secret that top scientists like his father, John Kendall, didn't even discuss them with their families. Therefore, it was really something to sit there eating breakfast, knowing that today father was going to fly to the moon, and mother did not even know that the lunar project was in the works. She would naturally not even dream that he was going with father. The thrill was overpowering. The secret was too much to bear. So story is starting from here that a boy whose name is Bobby. एक बॉबी नाम का बॉय है. उसके फादर साइंटिस्ट हैं, मिस्टर कैंडल. और साइंटिस्ट को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उन्हें अपनी फैमिली से, इवन उनकी वाइफ तक से उन्हें शेयर नहीं करना. साइंटिस्ट अपनी लैब में क्या करते हैं, उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने क्लोज़र से भी डिस्कस नहीं कर सकते. मींस उनकी वाइफ, फैमिली, बेटे किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते. सो ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड देयर वॉज अ लूनर प्रोजेक्ट. मून पे जाने का प्रोजेक्ट चल रहा था. और बट ये सीक्रेट बॉबी को पता चल चुका था कि उसके फादर लूनर प्रोजेक्ट पे जाने वाले हैं टू द मून. और बॉबी जब सोकर उठा तो इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वो थोड़ा सा लेट हो गया था एट 4 o'clock. तब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इस बात पे हुआ कि उसके फादर अब तक जा चुके होंगे टू द लूनर प्रोजेक्ट. इट इज़ अ 4 o'clock. 4 o'clock पे उसके फादर को चले जाना था. थोड़ा सा वो लेट उठा, इस वजह से थोड़ा सा वो सैड था. और एट द ब्रेकफास्ट टाइम वो अपनी मदर से भी उसने बात नहीं किया. ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसका माइंड उसके फादर के पास लगा हुआ था. उसे सीक्रेट पता था बट उसने किसी से डिस्कस नहीं किया इस बारे में. बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू द मून. उसे भी मून पे जाना था और वो चुपचाप बैठ करके अपना डिनर करता रहा, आई मीन ब्रेकफास्ट करता रहा. And of course, all things were secret at Buffalo Flats, so secret that top scientists like his father John Kendall didn't even discuss them with their families. It was really something to sit there eating breakfast knowing that father was going to the moon. वो ब्रेकफास्ट कर रहा था बट उसका माइंड कहाँ था? उसके फादर के पास. और उसकी मदर को भी नहीं पता था. उसने मदर को भी ये बात पता नहीं होने दी कि लूनर प्रोजेक्ट पे अपने फादर के साथ कौन जाने वाला है? बॉबी. बॉबी के माइंड में क्या प्लान आ रहा था कि वो भी किसी न किसी तरीके से अपने फादर के साथ जाएगा मून पे. ओके, सो as Bobby got up from this chair after breakfast, mother looked up and said, "And what's your plan for today, young man?" बॉबी अपने ब्रेकफास्ट टेबल से उठते हैं तो उनकी मदर बोलती हैं, आज तो हॉलीडे है, तो आज आपका क्या प्लान है? बॉबी हैड ए क्विक थॉट, ए सडन टेम्पटेशन. व्हाई नॉट गिव हर अ हिंट. बॉबी ने
बॉबी के माइंड में ये बात आई कि क्यों ना वो अपनी मम्मा को एक हिंट दे कि वो आज कहाँ जाने वाला है। कहाँ जाना था उसे? मून पे। वो एक छोटा बच्चा था और उसके माइंड पे ये थॉट आ रहे थे कि मैं भी अपने फादर की तरह मून पे जाऊँगा। बॉबी स्माइल्ड एंड सेड, आई थिंक आई विल गो टू द मून टुडे। बॉबी ने हिंट दे दिया कि आई विल गो टू द मून टुडे, बट मॉम ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा ऐसे ही वो he was joking like. Mom smiled too and went back to her reading. Well, see to it your fuel mixture is correct. मदर ने भी स्माइल करते हुए एज अ जोकिंग उन्होंने भी बोला कि अपना फ्यूल चेक कर लो, जाने लायक है ना तुम। रॉकेट जिस पे तुम्हारा जो प्लेइंग रॉकेट है उसी पे बैठ के मून पे जा रहे हो ना। उसके पास एक टॉय रॉकेट था, उसी से वो प्ले करता था। तो मदर ने बोला अपना फ्यूल चेक कर लो। I'll check it and mom, I might not be home for lunch. यस मैम मैं चेक कर लूँगा, बट मैं लंच पे यहाँ पर नहीं हूँगा बिकॉज आई विल गो टू द मून। वेयर विल यू ईट? ओह आई डोंट नो। मामा पूछती हो लंच आप नहीं करोगे, बट लंच करोगे कहाँ? आई डोंट नो, बॉबी रिप्लाइड। वेल माइंड योर मैनर्स एंड से थैंक यू व्हेन यू लीव, सेड Mrs. Kendall, still smiling as she watched Bobby dash out into the yard. Well, mind your manners and say thank you when you leave. मम्मा ने उनके मैनर्स से याद दिलाया कि आपको थैंक यू बोलना है जब आप यहाँ से निकलेंगे, और वो स्टिल स्माइलिंग करती रही। बॉबी वहाँ से बाहर निकल गए यार्ड की तरफ, मीन्स गार्डन में। His mother was reading a book and Bobby came out to the yard. बॉबी अपने यार्ड पे आते हैं। Then, out in the backyard, Bobby fussed around his space rocket, a little tightening a screw here, hammering in a nail there. Bobby यार्ड पे आकर के अपने जो उनका टॉय रॉकेट था उस पर स्क्रूज को टाइट करते हैं, हैमरिंग करते हैं, नेल उसमें क्लिक करते हैं, जस्ट until he could slip away without mother noticing where he was headed. जब तक उनकी मम्मा उसको नोटिस कर रही थी तब तक उसने ऐसे ही वर्क किए जिससे कि मम्मा का अटेंशन उसके ऊपर से हट जाए, और जैसे ही मम्मा उस पर ध्यान देना बंद कर देती हैं वो वहाँ से निकल जाता है यार्ड से। इट वॉज नॉट बैड रॉकेट एट दैट। उसका रॉकेट भी बहुत अच्छा रॉकेट था। टॉय रॉकेट जो था 6 फीट लॉन्ग था एंड 2 सीटर्स था, और नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल, वो बहुत ही अच्छा टॉय रॉकेट था। बट चाइल्ड स्टफ, लेकिन बॉबी को वो नहीं पसंद था, उसे रियल रॉकेट चाहिए था। After he had found the way in through the sewer, he had not paid any more attention to his own ship. उसे रिमेंबर हुआ कि जो उसके मून प्रोजेक्ट पे जाने का जो रॉकेट था उसका रियल वे कहाँ था, उसे याद आता है और वो उसी की तरफ अपने खुद को टर्न कर लेता है। He called that sewer. वो सीवर उसे बोलता है जिस वे से उसे जाना था। सीवर क्यों? क्योंकि सीवर आपने देखा ना अंडरग्राउंड होते हैं, और जितना भी वाटर सीवर से निकलता है वो सारा अंडरग्राउंड, तो दैट वाज द लाइक सीवर। ठीक है। ही वेंट कैजुअली आउट थ्रू द बैक गेट एंड टर्न लेफ्ट, किकिंग एट पेबल्स एज ही sauntered along, trying to look as though he had no place to go, had to be cheerful, didn't want to bump into any of his friends today. Either the way in through the sewer was at a place behind laboratory. उसे पता था कि सीवर मीन्स जो मून प्रोजेक्ट पे जाने का जो वे था वो किधर से था, तो वो अपने यार्ड से पेबल्स को क्लिक करते हुए, मीन्स उसमें उनको क्लिक करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और उसी सीवर वाले वे पर पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि आज उसे अपने फ्रेंड से मिलने का भी मन नहीं कर रहा था। जो सीवर वे था वो लेबोरेटरी के पीछे था। देयर वाज ए काइंड ऑफ एन एले देयर दैट nobody ever walked through, and then this round lid you could lift up and look under, and a ladder you could climb down. सीवर पे जाने का एक लेट था, उस लेट को ओपन करना था, उस लेट से नीचे स्टेयर्स थी, उन स्टेयर्स से क्लाइंब डाउन करना था, और वो सीवर वाला वे उसे मिल जा रहा था। बॉबी हैडंट डेयर गो डाउन एट फर्स्टली, बॉबी ने लीड तो ओपन कर लिया, उस स्टेयर्स पे जाने का उसका डेयर नहीं कर पाया वो। बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवरनाइट हिज क्यूरियोसिटी हैड प्रिवेल्ड एंड ही हैड गॉन बैक and dug down into the lower level. He called it a sewer because of sewers being underground, but this place was clean and had bunches of wires strung in every direction and a faint little lights you could see by.
बॉबी उस सीवर वाले वे पे जाने के लिए फर्स्टली तैयार नहीं हुआ, बट ओवरनाइट वो इसी बारे में थिंकिंग कर रहा था कि उसे मून पे जाना है। तो ही इनकरेज्ड हिमसेल्फ और वो उस वे से निकल जाता है। उसे सीवर क्यों बुलाता है? बिकॉज दैट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ सीवर, बट इट वॉज अ नीट प्लेस एंड क्लीन प्लेस। वो सीवर जैसा गंदा नहीं था, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा प्लेस था, और वहाँ पर डिम लाइट्स जल रही थी, जैसे कि जिससे कि आप डायरेक्शन वहाँ से जाने का क्लियरली देख सकें।